Okay, so hello everyone, welcome to Spider webinar. So in today's webinar, we are going to discuss on the moving averages, but the advance of the usage of averages, we will learn some best concepts like what is Guppy moving average, what is rainbow strategy, and lastly, average band strategy and golden death average strategy. So before we begin, I would like to present one small शायरी for our clients. So शायरी is समझना था मार्केट का सेंटीमेंट पर भाव देख के बदल गया टेम्परमेंट। समझना था मार्केट का सेंटीमेंट पर भाव देख के बदल गया टेम्परमेंट। ये वेबिनार देखने के बाद स्पाइडर ही लगेगा रेलेवेंट क्योंकि स्पाइडर ही है एनालिसिस में एक्सीलेंट। सो लेट्स बिगिन विद द वेबिनार। So before we begin with the webinar, I'd like to explain that this webinar will be in Hindi and English as well. So every of the users will be comfortable with the webinar. Okay. So I'll turn off my camera so you'll be able to see my screen properly. Okay, so advanced strategy on Guppy and Rainbow. So things we are going to discuss today will be advanced average strategies in which we have included Guppy moving average strategy, Rainbow moving average strategy, support and resistance moving average strategy. Okay, and after that we are going to check about advanced query making with technical query. Like we'll check how to change the input in query making and golden and death crossover strategy. Okay, so let's begin. So why advanced average strategy is required? So main question is that why advanced average strategies? So it will help to boost your analysis as you will understand the complex average moves. It will also help to take strong decisions in all market phase. As you will learn advanced analysis, complexity will no longer be the issue. You will learn to make advanced technical queries in Spider. And lastly, no need for more confirmation studies as average itself will provide support and resistance. So you have seen that averages have worked many times as a support and resistance. ये यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी का वीकली चार्ट है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट काफी बार लिया हुआ है निफ्टी ने. ओके, सो एडवांस स्ट्रेटेजीज लर्न करने का रीजन यही है ना कि इट विल हेल्प टू एनालाइज मार्केट इन मोर डीप. ओके, एवरेज सबको ऊपर ऊपर से पता रहता है कि हाँ यहाँ पे एवरेज ने सपोर्ट ले लिया, हाँ यहाँ पे एवरेज ने सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या? हाउ आर यू गोइंग टू एनालाइज द नेक्स्ट मूवमेंट? आप टारगेट कैसे सेट करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि यही एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपके लिए? ओके, सो ये समझने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आपको हेल्प करेगी आगे के लिए. ओके, so first thing we are going to check here is Guppy moving average strategy. So what is Guppy moving averages? So it is the combination of 12 moving averages. 6 averages are short term and 6 averages are long term. So अब अगर यहाँ पे चार्ट देखोगे, यहाँ पे विप्रो का वीकली चार्ट है. ओके, यहाँ पे दो कलर्स है एवरेज के, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है. सो ब्लू कलर जो है वो शॉर्ट टर्म एवरेज है. ओके, आप देखोगे तो 6 लाइंस है, मतलब टोटल 12 मूविंग एवरेज की लाइन जिसमें ऐड की हुई है. Okay, so blue averages are short term and red averages are long term. Crossovers of this averages indicates the changes in trend. Okay, so जैसे ही आप वीकली चार्ट देखोगे, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया. So जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ था, okay, after that क्रॉस ओवर you can see the movement of the Wipro. Okay, साथ में वहाँ पे हम लोग को एक वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिला था. आइडियली उसके पहले आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम पूरा ड्राई आउट था, लेकिन जब भी ब्रेकआउट मिला उसके बाद आप देखोगे तो काफी गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया वहां पर. ओके, कंफर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे देखा है, मतलब कंफर्मेशन में मैंने एमएसीडी लिया हुआ. सो एमएसीडी भी अगर आप देखोगे तो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस हो चुका है दोनों टाइम जब भी क्रॉस ओवर हुआ. ओके, when averages give crossover in same range multiple times then it is the signal of price consolidation. ओके, सो जैसे यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एवरेज अप्स एंड डाउन हुआ, और वो टाइम पे अगर आप देखोगे तो एवरेज एक ही रेंज में चल रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट एवरेज यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है.
ओके, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, और जैसे ही वो कंसोलिडेशन ब्रेक होता है आप देखोगे तो दोनों एवरेजेस के बीच में जो गैप है वो गैप इंक्रीज हो गया। ओके, रेड और ब्लू दोनों के बीच में गैप हैज बीन इंक्रीज। So this increase in gap is also indicates that price is in good strength. Okay, if you can check here. Okay, देखो यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हुआ था वहां पे रेड एवरेजेस अगर आप देखोगे सो काफी क्लोज में थे। एक बार क्रॉस ओवर कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ना एवरेजेस के बीच में गैप इंक्रीज होते गए। ओके, सो दिस इंक्रीज इन गैप्स मींस प्राइस काफी अच्छे स्ट्रेंथ में चल रहा है। ओके, समटाइम्स शॉर्ट टर्म एवरेजेस आल्सो टेक द सपोर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेजेस। सो कभी कभी कैसा हो जाता है, अभी आप रिसेंटली अगर विप्रो का सिनेरियो देखोगे वीकली चार्ट में, सो एक आइडली छोटा सा कंफर्म कंसोलिडेशन है, लेकिन उसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट लिया होगा। ओके, प्राइस ने तो सपोर्ट लिया है वहां पे, साथ साथ में मूविंग एवरेजेस ने भी वहां पर सपोर्ट लिया है। ओके, सो काफी इजी एनालिसिस है गप्पी से, सिर्फ कुछ ही एवरेजेस आपको, मतलब 12 मूविंग एवरेजेस है, सिर्फ मूविंग एवरेजेस ही आप देखोगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि प्राइस एक्चुअली अभी कौन से फेज में चल रहा है। ओके, वी कैन ऑल्सो चेक मोर एग्जाम्पल्स हियर। मैं इसको आपको सॉफ्टवेयर में लेके जाता हूँ डायरेक्ट। ओके, सो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीन बना के रखा है, मैं डायरेक्टली वो स्क्रीन लोड कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा स्क्रीन है गप्पी का। अभी इसमें हम लोग एक एग्जांपल अदानी पोर्ट्स का ही देख लेते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, एक टाइम था जब अदानी पोर्ट्स एक ही रेंज में चल रहा था। ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स आपको क्रॉस ओवर्स आए थे, और प्राइस भी अगर आप वो एरिया में देखोगे तो काफी, मतलब एक रेंज बाउंड चल रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है वहां पे। सो आइडली ये जो रेंज बाउंड ट्रेडर्स है वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस बैठ रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट बैठ रहा है। सो जब ये भी रेजिस्टेंस पे जाएगा वहां पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, और जैसे ही सपोर्ट पे आता है वहां से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। लेकिन एक और चीज है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इस चीज का वेट करेंगे यहाँ पे। ये जैसे ये ब्लू एवरेजेस है, जैसे ही रेड एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये एरिया देख रहे हो यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, आइडियली यहाँ पे वॉल्यूम इतना नहीं था जितना यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। सो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे प्राइस में भी इंक्रीज आया, और अगर आप एवरेजेस में भी देखोगे तो एवरेजेस में भी देखो गैप इंक्रीज होते जा रहा है। सो दिस मीन्स दैट प्राइस का जो मूवमेंट है वो काफी बुलिश है। इंक्रीज इन एवरेजेस, इंक्रीज इन द गैप ऑफ एवरेजेस मतलब काफी स्ट्रेंथ में चल रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से अदानी पोर्ट्स कंसोलिडेशन फेज में, और वापस से उसने ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। सो अगेन देयर आर चांसेस दैट इफ अदानी क्रॉसेस अबाउट 880 तो वहां पे एक और बुलिशनेस का आने का चांसेस हो सकता है। साथ में हमारा एमएससीडी भी अगर आप देखोगे तो एमएससीडी का भी कंफर्मेशन है। एमएससीडी इज आल्सो ट्रेडिंग अबाउट द जीरो लाइन एंड इट हैज आल्सो गिवन द क्रॉस ओवर। वन मोर थिंग, इफ यू ऑब्जर्व, वॉल्यूम भी 3 वीक से कॉन्स्टेंटली राइजिंग है। ओके, और यहाँ पे जस्ट मूविंग एवरेजेस ने, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का यहाँ पे सपोर्ट लिया होगा। उसके बाद से यहाँ से देखो आप वापस से वो यहाँ से राइज हो रहा है। ओके, सो ये एक और कंफर्मेशन है कि यहाँ पे बुलिशनेस स्टार्ट हो सकता है। ओके, अभी आप इसको ट्रैक कैसे करोगे, हाउ यू विल स्कैन दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स। ओके, सो ये रिजल्ट्स को स्कैन करने के लिए भी मैंने एक क्वेरी बनाया। सो इससे ना आपका काम और इजी हो जाएगा। आई विल जस्ट रन द टेक्निकल क्वेरी, आई विल जस्ट लोड माय क्वेरी हियर। ओके, ये सारे क्वेरीज और सारे स्क्रीन्स आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट अस ऑन support@spidersoftwareindia.com, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 35018383। सो हम लोग ये जो भी स्क्रीन्स है, जो भी क्वेरीज है, साथ साथ ये पीपीटी भी जो मैंने बनाया वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो कमिंग बैक टू टॉपिक, हमारा ये क्वेरी था गप्पी मूविंग एवरेज का। ओके, सो ये मैंने क्वेरी बना के रखा हुआ। सो खाली क्वेरी आपको रन करना है, आप क्वेरी रन करोगे और उस बेसिस पे आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो एक आज का ही हम लोग एग्जांपल रख लेते हैं, यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट 0 रखते हैं। सो आज के रिजल्ट्स आएंगे इसमें। ओके, वन मोर थिंग कि एक कंडीशन मेरा डेली पे रन हो रहा है। इफ यू चेक हियर, यहाँ पे DLY लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये मेरा कंडीशन डेली पे रन हो रहा है।
Okay, so I'll change my chart from weekly to daily. ओके, सो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये सारे मुझे सेल की रिजल्ट्स आ रहे, बिकॉज 2 डेज से अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट में इतना पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा। ओके, सो अगर आप देखोगे, देखो ये फ्रेश एग्जांपल है सेलिंग के लिए। ओके, ये सारे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सारे रिजल्ट्स यही है जो 1-2 दिन से मार्केट नेगेटिव चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो ये डायरेक्टली आप देख रहे हो जैसे ही अभी क्रॉस ओवर होने की तैयारी में है, ये एक एवरेज क्रॉस हो चुका है, बाकी के एवरेज भी अभी क्रॉस हो जाएंगे जस्ट इन केस अगर ये लो यहाँ का ब्रेक कर देता तो। ओके, साथ साथ एमएससीडी ने भी बेरिशनेस का साइन दे दिया है यहाँ पे, एमएससीडी भी फॉलिंग है और नेगेटिव क्रॉस ओवर भी आ चुका है यहाँ पे। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी यू कैन स्कैन ऑल योर रिजल्ट्स। ओके, और भी रिजल्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेरी ऑफ सेट रैंडम में 3 लेके देख लेता हूँ। ओके, सो 3 में यहाँ पे आपको सेलिंग का रिजल्ट आता BASF का, दैट मीन्स यहाँ पे आपको रिजल्ट आया था करंट कैंडल विल बी कंसिडर्ड एज 0, उसके पहले का 1, उसके पहले का 2 और ये 3। सो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिया गया था। उसके बाद आप देखोगे तो 4 डेज से काफी ये स्क्रिप्ट नीचे ही कंटिन्यूसली ट्रेड होते जा रहा। ओके, और भी एग्जांपल्स देख लेते, क्वेरी ऑफसेट 10 करके। ओके, सो इसमें अभी वेलकॉर्प आया। सो अगर आप वेलकॉर्प का रिजल्ट देखोगे तो देखो यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट टर्म एवरेजेस ने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे, उसके बाद से देखो ये मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है इसमें। साथ में देखोगे एमएससीडी का भी हमको यहाँ पे कंफर्मेशन है, जीरो लाइन के ऊपर आ गया, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम भी काफी अच्छा राइज हो रहा है यहाँ पे। सो आइडियली देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा था 160 पे, 160 से डायरेक्टली वो अभी 213 तक जा चुका। ओके, सो अब आप टारगेट इसमें आप कैसे सेट करोगे? सो जब भी आपको एमएससीडी का क्रॉस ओवर आ जाता है, नेगेटिव क्रॉस ओवर, ओके, नेगेटिव क्रॉस ओवर आ जाता है, और एल्स जब भी प्राइस शॉर्ट टर्म एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, मीन्स सारे ब्लू लाइंस को अगर वो क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो वहां पर आपका एग्जिट पॉइंट होता है, और एल्स एमएससीडी का जब नेगेटिव क्रॉस ओवर आता है तब, या फिर आपका कुछ ऐसा पर्टिकुलर परसेंटेज आपने ले लिया कि समझो अभी वेलकॉर्प पे आपको 15% आ गया, नाउ इफ यू वांट टू टेक एग्जिट देन आप परसेंटेज के बेसिस पे भी आप एग्जिट ले सकते हो। ओके, अगर और एग्जांपल इसमें देखें, सो ब्लू स्टार देख लेते हैं। देखिए ब्लू स्टार में भी आपको यहाँ पे एग्जांपल आया, यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर गया है एमएससीडी। साथ में मैंने एमएससीडी का भी कंफर्मेशन इसमें इसलिए डाला कि आपको चीजें और कंफर्म हो जाए, अगर आपको ऐसा ना लगे बाद में कि एवरेज ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया लेकिन कल को उठ के वापस वो नीचे आ जाता तो। सो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा, एक स्टॉप लॉस आप इसमें लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें क्या कंसिडर करोगे कि जो एवरेज आपका लास्ट वाला जो एवरेज है, अभी समझो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट था ये कैंडल पे। ओके, सो ये कैंडल के प्रीवियस कैंडल का जो लो है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है, अगर आप इसमें ब्लू स्टार में देखोगे तो ये वाला एरिया काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो काफी बार प्राइस रिजेक्शन मिला है हमको यहाँ पे, काफी बार ये वाले रेंज के ऊपर ही क्लोजिंग सस्टेन हुआ है। सो 977 से लेके 975 वाला जो एरिया है, ये काफी अच्छा सपोर्ट बन सकता था ब्लू स्टार के लिए। ओके, और आप देखोगे तो वो एरिया उसने ब्रेक भी नहीं किया, आई मीन टू से सपोर्ट लिया ही नहीं उसने वहां पे। ओके, डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल पे जैसे एंट्री बन रहा है वैसे कॉन्स्टेंटली वो हायर हाइस बनाते जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 4 डेज से थोड़ा वीकनेस है, जस्ट बिकॉज निफ्टी भी अभी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है वहां पर। ओके, एमएससीडी भी देखोगे तो एमएससीडी भी अभी धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि ब्लू स्टार कंसोलिडेट हो जाए, और एल्स वापस से यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके वापस से वो मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। ओके, एक और देख लेते हैं। ये रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जीरो लाइन के ऊपर है एमएससीडी। ओके, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो चुका है यहाँ पे, उसके बाद आप देखोगे तो काफी अच्छा सा मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, सो इसमें भी आप टारगेट कैसे सेट करोगे? टारगेट रिसेंटली अगर आपका नियर बाय कोई हाई बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक आपका हाई आ रहा है, ओके, ये इसको अगर आप लाइन चार्ट करोगे तो लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पर एक आपका पीक पॉइंट बनता है, ओके, विच इज अराउंड
440. सो 440 को आप एक आपका टारगेट सेट करके चल सकते हो. ओके, और एल्स जैसे मैंने बताया आपका कुछ परसेंटेज बेसिस टारगेट होगा तो आप परसेंटेज लेके एग्जिट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी गप्पी मूविंग एवरेज. ओके, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ. ओके, एक बार मैं समराइज करा देता हूँ क्या है. 6 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के है और 6 मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के. ओके, जैसे ही शॉर्ट टर्म वाला एवरेज लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एंड वाइस वर्सा. ओके, द इंक्रीजिंग गैप ऑफ द एवरेजेस दैट मींस कि प्राइस काफी अच्छे स्ट्रेंथ में चल रहा है. ओके, एंड इसके साथ आप कंफर्मेशन में एमएसीडी यूज कर सकते हो. ओके, एंड वन मोर थिंग, आप इसमें टाइम फ्रेम कौन सा कंसीडर करोगे. So you can use this in daily time frame. You can use this in intraday as well. इंट्राडे में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 5 मिनट्स पे यूज करें बिकॉज मूविंग एवरेजेस ज्यादा है. सो अगर आप 5 मिनट्स प्रेफरेबल रहेगा उसमें, बिकॉज 5 मिनट्स पे जैसे ही आपको कंफर्मेशन आता है वैसे ही आपको लॉन्ग टर्म में कंफर्मेशन आएगा, वैसे ही 10 मिनट्स पे आएगा, 15 मिनट्स पे आएगा. सो अर्ली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना बेटर रहेगा इसमें. ओके, सो नेक्स्ट है रेनबो मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी. सो रेनबो से ही आपको समझ में आ गया रहेगा, एवरेज चार्ट देख के भी आपको समझ में आ गया रहेगा. इट इज ऑल अबाउट द रेनबो. ओके, रेनबो के जो कलर्स है वही मैंने कलर्स लिए हुए. ओके, कितने मूविंग एवरेजेस है अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 मूविंग एवरेजेस है. ओके, और सबके पैरामीटर सेम ही है. अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल 5 मूविंग एवरेज का पैरामीटर है सब में. लेकिन ये ऐसे क्यों दिख रहा है. ओके, मेन क्वेश्चन आपका वो आया रहेगा कि ऐसे कैसे सेट हुआ, क्योंकि सेम ही मूविंग एवरेज ऐड किया हुआ तो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. सो मैंने इसको कैसे ऐड किया हुआ, मैंने पहले एक्सपोनेंशियल 5 ऐड किया. ओके, मैं सेम चीज आपको स्पाइडर में दिखा देता हूँ. ओके, आई विल जस्ट हाइड ऑल दिस स्टडीज. ओके, सो ये सारे एवरेजेस और एमएससीडी मैंने हाइड कर दिया. अभी वो रेनबो मैंने कैसे क्रिएट किया. सो आप एस बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक स्टडी सिलेक्शन का विंडो आता. ओके, आई विल क्लोज अनदर विंडो जस्ट अ मिनट. ओके, सो जैसे स्टडी विंडो आपका आया, यहाँ पे आपने एवरेज सिलेक्ट किया. ओके, इन ऑल टाइम फ्रेम पे ले लिया इफ रिक्वायर्ड. यहाँ पे पैरामीटर आपको लेना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल E5. ओके, डिस्प्ले में जाके अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप उस अकॉर्डिंगली कलर चेंज कर सकते हो. आई विल इंक्रीज द थिकनेस ताकि थोड़ा प्रॉपरली विजिबल हो. ओके, सो ये एक्सपोनेंशियल 5 मैंने ऐड कर दिया. अभी वापस मैं एक्सपोनेंशियल 5 ऐड करूंगा तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, राइट. लेकिन इसको ऐड करने का एक और तरीका, ये रेनबो बनाने के लिए आपको वापस से सेम पैरामीटर लेना है यहाँ पे E5. ओके, थिकनेस आई विल अगेन इंक्रीज टू. ओके, नाउ मेन थिंग, यहाँ पे इनपुट का जो टैब है, इनपुट में आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस क्लोज है. हमें इनपुट यहाँ पे प्रीवियस एक्सपोनेंशियल का लेना है. ओके, जो रिसेंटली हमने ऐड किया, ये E5 ऐड किया हम लोग ने. वी हैव टू सिलेक्ट दिस E5 एंड वी हैव टू ऐड दिस अगेन. ओके, सो आप देख रहे हो अभी चेंजेस दिख रहे हैं मूविंग एवरेजेस में. ओके, ये वाला एवरेज ऊपर आ गया इससे. अब ये जो लेटेस्ट वाला मैंने एवरेज ऐड किया है वो प्रीवियस एक्सपोनेंशियल 5 डेज मूविंग एवरेज का इनपुट है उसमें. आई विल रिपीट दिस सेम स्टेप फॉर 7 टाइम्स. ओके, वापिस से मैं इसको ऐड करूंगा, ऐसे मैं 7 टाइम्स ऐड करूंगा तो ये मेरा रेनबो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, मैं एक और बार इसको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपरली व्यू मिल जाए कि ये कैसे हो रहा है सेट. ओके, अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो ईएमआई है यहाँ पे 5 डेज के. अभी हम लोग लेटेस्ट वाला ही लेंगे यहाँ पे. लेटेस्ट वाला हमारा ये है नीचे वाला. सो विल सिलेक्ट दिस. ओके, डिस्प्ले से थिकनेस इसका मैं 2 कर देता हूँ वापस से. नाउ दिस टाइम आई विल चेंज द कलर तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये कैसे आ रहा है. ओके, इनपुट हमारा लेटेस्ट E5 है एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड. ओके, so this is how you can add rainbow moving average. Okay,
ये जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आई एम शोइंग यू कि ये कैसे करना। बाकी ये सेम चीज स्क्रीन और क्वेरी आपको शेयर कर दूंगा मैं, आप डायरेक्टली सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। सो इसका स्क्रीन मैंने बनाया हुआ है, वो आपको शेयर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज रेनबो मूविंग एवरेज एक्चुअली? So it is the combination of 7 moving averages with inputs of same average. So for example, I have take here as EMA 5. Okay. Now globally कौन से parameters use होता है? So globally you can see that EMA 5 and EMA 7 are mostly used. Also SMA 5 and SMA 7. Exponential और simple के बीच का क्या difference है ये मैंने previous वाले webinar में मैंने explain किया था। So आप वो go through कर सकते हो। मैं एक और बार शॉर्ट में बता देता हूँ दोनों का डिफरेंस कि ईएमए जो है वो आपको रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। सो ईएमए विल बी दी फास्टर मूविंग एवरेज एज कंपेयर टू एसएमए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, when average turns into true rainbow color then it is a buy call and vice versa. Okay, सो मैं इसको स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, सो एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मैंने सर्कल के हमारे रेनबो के तरफ से बाय कॉल और सेल कॉल जनरेट हुआ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, व्हेन एवरेज टर्न्स इनटू ट्रू रेनबो कलर देन इट इज अ बाय कॉल एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे एवरेज का रेनबो के कलर के हिसाब से फॉर्म हो गया तो ये यहाँ पे हमारा बाय कॉल जनरेट हो गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आरती ड्रग्स का ये वीकली चार्ट है, उसके बाद काफी अच्छा सा रैली मिला था आपको यहाँ पे। ओके, कंफर्मेशन में मैंने स्मूथ एंड आरएसआई लिया हुआ। ओके, आरएसआई जैसा ही मेरा 50 के अबाव जा रहा है तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। सेम थिंग रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये जो सेल कॉल यहाँ पे जनरेट हुआ था, ये रेनबो का कलर मेरा रिवर्स हो गया। ओके, रिवर्स होने के बाद अगर आप देखोगे तो एक कॉन्स्टेंटली आरती ड्रग्स नीचे जा रहा था। सो ये मेरा यहाँ पे सेल कॉल जनरेट हो गया था। ओके, सो सेम टाइम पे अगर आप आरएसआई देखोगे, सो आरएसआई भी 50 के नीचे कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ओके, रेनबो ऑल्सो एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो अगर आप रिसेंटली देखोगे, रिसेंट वीक का जो आरती ड्रग्स का कैंडल बना, उसका अगर आप हाई देखोगे तो एग्जैक्टली उसने रेनबो के टॉप कलर को टच करके नीचे आ गया। दैट मीन्स उसने रेनबो का वहां पर रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, ये चीज अगर आप सिंगल कोई भी मूविंग एवरेज लेते आप अगर 1 या 2 मूविंग एवरेजेस ऐड करके अगर आप ये चेक करते तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलते थे। अगर आप अभी रेनबो यूज करोगे तो रेनबो में आपको बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सो एक ब्रॉडर व्यू जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग की रेनबो मूविंग एवरेज एंड गप्पी मूविंग एवरेज एक एडवांस टाइप का स्ट्रेटेजी है जो आपको एनालिसिस में काफी हेल्प करेगा। ओके, सो ये सेम चीज हम लोग वापस से चार्ट पे देख लेते हैं। स्पाइडर में आते हैं वापस से, इसका भी मैंने स्क्रीन बनाकर रखा हुआ, सो आई लोड दैट स्क्रीन। ओके, सो दिस इज माय रेनबो मूविंग एवरेज स्क्रीन। ओके, सो एक एग्जांपल हम लोग अदानी का ही ले लेते, अदानी एंटरप्राइज का। ओके, सो अदानी एंटरप्राइज का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, सो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर्स हो रहे सारे एवरेजेस के। ओके, सेम टाइम अगर आप स्मूथ एंड आरएसआई देखोगे, यहाँ पे स्मूथ एंड आरएसआई 50 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, एक काफी अच्छा सा कंफर्मेशन है। उसके बाद आप रैली देखोगे तो एक काफी अच्छा रैली मिला और प्राइस ने काफी बार मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया होगा। ओके, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर जूमिंग करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज का, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ओके, सो इन शॉर्ट एवरेजेस ने काफी प्राइस ने काफी बार एवरेजेस का सपोर्ट लेके कांस्टेंट मूवमेंट दिया होगा। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिसेंटली वापस से अभी अदानी एंटरप्राइज ने क्रॉस ओवर दिया हुआ है यहाँ पे और वापस से मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है। जो कंसोलिडेशन का जो हाई था वो ऑलरेडी ब्रेक हो गया। ओके, सो एज पर दी आरएसआई अभी भी चांसेस है कि अदानी एंटरप्राइज और थोड़ा रैली कंटिन्यू कर सकता है अनटिल अनलेस वो ओवरबॉट जोन में नहीं आ सकता। ओके, इसका भी मैंने क्वेरी बनाया हुआ, सो हम लोग इसको क्वेरी में भी देख लेंगे। आई विल ओपन द टेक्निकल क्वेरी। ओके, आई विल लोड द क्वेरी, रेनबो क्वेरी।
ओके, क्वेरी आप देखोगे सिंपल, सिर्फ 4 लाइन का क्वेरी है, 2 बाइंग के लिए और 2 सेलिंग के लिए। एक रेनबो का ऑलरेडी एक कंडीशन अवेलेबल है टेक्निकल क्वेरी में, सो आपको डायरेक्टली बस मैंने वही क्वेरी वही कंडीशन इसमें ऐड किया। ओके, सो एक रैंडम ऑफसेट में यहाँ पे 5 का ले लेता हूँ और इसको रन करके चेक कर लेता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, सो अवंती फीड का मुझे रिजल्ट आया डेली पे। ओके, सो 5 पे मतलब प्रीवियस यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे हमको क्रॉस हुआ जाए, यहाँ पे बाइंग कॉल आया। सो अवंती फीड आप अगर देखोगे तो एवरेज का सपोर्ट लेके कंटिन्यू हो रहा है। ओके, वॉल्यूम का भी हमको यहाँ पे अच्छा सा कंफर्मेशन है साथ में। ओके, और कौन से रिजल्ट है और भी देख लेते हैं। यहाँ पे C8 भी आया हुआ। सो C8 में अगर आप देखोगे तो C8 में भी देखो यहाँ पे आपको एवरेजेस के क्रॉस ओवर हुए, वो भी विथ वॉल्यूम, एंड ऑल्सो RSI हमारा 50 के अबाव। सो एक काफी अच्छा कंफर्मेशन के साथ मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है। अगर सोलारा देखे तो सोलारा में भी देखो क्रॉस ओवर आया है, मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है लेकिन मूवमेंट कंटिन्यू है। ओके, वॉल्यूम भी आ रहा है बीच बीच में। सो अभी 16 में वापस से चांसेस हो सकता है कि अगर ये पीक पॉइंट ब्रेक कर दे 820 का, तो वापस से मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। ओके, इसको आप वीकली पे भी रन कर सकते हो, ये तो अभी मैंने डेली पे किया था। यू कैन ऑल्सो रन दिस क्वेरी ऑन वीकली एज वेल। सो आई जस्ट टर्न दी कंडीशंस टू वीकली, और करंट वीक का क्या सिनेरियो है ये भी देख लेते हैं रेनबो के तरफ से। ओके, सो अभी चार्ट में वीकली कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एजिस केमिकल का रिजल्ट आया। ओके, सो अगर आप एजिस केमिकल देखो तो काफी टाइम से वो एकदम बेरिश मूवमेंट था, तो अभी जाके उसने एवरेज क्रॉस ओवर दिया और प्राइस भी एवरेज के ऊपर आ गया। ओके, स्मूथ एंड RSI जस्ट ये 50 को क्रॉस किया हुआ, 51 हो गया। सो एजिस केमिकल में अभी चांसेस हो सकते हैं बुलिशनेस के। ओके, टारगेट आप कैसे सेट करोगे? यहाँ पे अगर आप ये पीक पॉइंट देखोगे 251 आ रहा है, एट द सेम टाइम अगर आप प्रीवियस पीक देखोगे यहाँ पे, ये भी 250 के आसपास, 251, उसके ऊपर प्राइस रिजेक्शन है यहाँ पे। सो दैट मीन्स 250 पे काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस बन सकता है, और रेजिस्टेंस 2 आपका डायरेक्टली 315 के आसपास हो सकता है। सो देयर कैन बी गुड चांसेस कि एजिस केमिकल ये दोनों टारगेट अचीव कर ले। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो रैलिस में आया हुआ, यहाँ पे भी जस्ट एक अच्छा सा फ्रेश क्रॉस ओवर हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, और स्मूथ एंड RSI भी जस्ट 50 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। और अगर आप ये भी देखे, वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी 3 वीक्स का कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द एनालिसिस विथ रेनबो। सो नेक्स्ट इज एवरेज बैंड स्ट्रेटेजी। ओके, सो इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जस्ट। ओके, सो व्हाट इज एवरेज बैंड स्ट्रेटेजी? So this is the combination of 3 exponential moving averages of 51. ओके, 3 एवरेजेस है 51 के, एक्सपोनेंशियल 51। अब ये 3 51 के है तो तीनों डिफरेंट कैसे दिख रहे हैं? ओके, सो एक का इनपुट है हाई, एक का इनपुट है लो, और एक का इनपुट है क्लोज। ओके, सो जो ऊपर का जो ग्रीन लाइन है वो हाई के इनपुट से है, बीच का जो ब्लू लाइन है वो क्लोजिंग का इनपुट है, और लास्ट का जो रेड लाइन है वो लो का इनपुट है। ओके, सो व्हाई आई क्रिएटेड दिस बैंड? अगर आप इसको गूगल करोगे देन यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग अबाउट दिस एवरेज बैंड स्ट्रेटेजी, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय मी। अभी मैंने ये बैंड क्यों क्रिएट किया? अगर आप देखोगे तो ये बैंड काफी अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता। नाउ व्हाई आई हैव टू 51? बिकॉज 51 विल वर्क इन ऑल दी स्क्रिप्ट्स। सारे कंपनीज में 51 एक अच्छा सा रिजल्ट देगा, बट यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। यू कैन चेंज इट टू 21। अगर आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना तो आप 21 रख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना तो आप 100 भी रख सकते हो, 75 भी रख सकते हो। बट एज पर माई एनालिसिस द 51 वर्क्स बेस्ट। ओके, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली, व्हाट हाउ दिस बैंड वर्क्स? सो अगर आप देखोगे चार्ट, यहाँ पे टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। ओके, सो ये जो सर्कल मैंने बना है यहाँ पे काफी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले चुका है टाटा मोटर्स। ओके, आई ऑल्सो रिटन दैट प्राइस टेकिंग सपोर्ट ऑफ एवरेज बैंड। पहले भी अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
उसके बाद फॉल हो गया, वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया वहां पे, और वापस से एक हैवी फॉल देखने को मिला ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे। ओके, उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली आया, एक सपोर्ट लिया यहाँ पे थोड़ा टाइम, उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग रैली आया, वी सॉ सम कंसोलिडेशन फेज हियर एंड इट टुक द सपोर्ट ऑफ एवरेज बैंड, एंड उसके बाद आप देखोगे तो वापस एक स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट हो गया। नाउ सेम थिंग इज अपियरिंग इन टाटा मोटर्स अगेन। अगर आप देखोगे तो वापस से एक लंबा सा कंसोलिडेशन फेज आया टाटा मोटर्स में, वापस से एवरेज बैंड का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। नाउ देयर इज अ गुड चांस कि वापस से ये रेजिस्टेंस तक आ जाए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है 525 के आसपास। सो 525 विल बी द गुड रेजिस्टेंस फॉर टाटा मोटर्स राइट नाउ। ओके, जैसे ही 525 ब्रेक हो जाता, वी कैन सी वन शार्प मूवमेंट इन टाटा मोटर्स। ओके, साथ में स्मूथ एंड आरएसआई भी अच्छा सा दिख रहा है, यहाँ पे 53 बता रहा है, दैट मीन्स कि स्मूथ एंड आरएसआई इज ऑल्सो अबाव 50। ओके, 50 के ऊपर चल रहा है, सपोर्ट ले लिया है यहाँ पे, सो देर आर हाई चांसेस कि टाटा मोटर यहाँ पे एक बुलिशनेस क्रिएट कर सकता। ओके, सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार गो थ्रू कर लेते। इट क्रिएट्स अ बैंड विच इंडिकेट्स दैट व्हेन प्राइस इज अबव बैंड, स्क्रिप इज इन गुड स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। सो जैसे आप देख रहे हो, प्राइस जब बैंड के ऊपर रहता तो उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा दिखता है, एंड सेम थिंग जब प्राइस बैंड के नीचे जाता है तब एक काफी से अच्छा सा स्ट्रेंथ बेरिशनेस का होता है वहां पर। ओके, जनरली प्राइस टेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैंड और क्रॉस द बैंड टू जनरेट अ ब्रॉडर व्यू। ओके, जब बैंड को क्रॉस कर देता है तो वहां पे एक अच्छा सा बुलिशनेस जनरेट होता है, एक अच्छा सा बाइंग जनरेट हो जाता है वहां पर। ओके, my suggested parameter here is 51 for all time frame, or else you can change it as per your convenience. Okay, so ये सेम चीज हम लोग वापस से हमारे सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं। So I'll just open back my software. I'll load the chart. ओके, ये मेरा एवरेज बैंड का स्क्रीन है, I'll open the screen. ओके, इसमें एक फ्रेश हम लोग एग्जांपल ONGC का देख लेते हैं। ओके, सो इफ यू चेक इन ONGC वीकली चार्ट, ओके वीकली चार्ट है मेरा। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ONGC ये फेस से नीचे आ गया था, मतलब यहाँ पे एक एवरेज का रेजिस्टेंस ले लिया था और अच्छा एक फॉल डाउनफॉल देखने मिला था, और यू कैन ऑल्सो से दिस एज अ कोविड फ्री फॉल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब तक बैंड को क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से अभी बुलिशनेस इसका जनरेट हो रहा। सो ONGC जैसे ही यहाँ से क्रॉस हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट आया, लेकिन वापिस से उसने बैंड का सपोर्ट लिया यहाँ पे, वापिस से सपोर्ट लेके एक अच्छा सा मूवमेंट आया, वापिस से यहाँ पे बैंड का सपोर्ट लिया, वापिस से मूवमेंट एंड अगेन बैंड का सपोर्ट। सो आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स बैंड का सपोर्ट लिया, एंड दिस टाइम ये बैंड का सपोर्ट लेके काफी शार्प रैली आया था इसका। ओके, सो ऐसे काफी स्क्रिप्ट्स है जहाँ पे ये एवरेज बैंड एक काफी अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता। एक इमामी लिमिटेड का भी एक फ्रेश एग्जांपल है, सो मैं उसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो अगर आप इमामी में भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, जैसे ये क्रॉस हुआ है, एक काफी अच्छा सा शार्प रैली आया है यहाँ पे, और उसके बाद एक सपोर्ट था यहाँ पर, सपोर्ट लेके वापस कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्रॉस करके अभी नीचे आ गया। सो इमामी में एक बेरिशनेस जनरेट हो चुका है यहाँ पर। ओके, इसका भी क्वेरी है, इसका भी मैं क्वेरी आपसे शेयर कर लूंगा। एक बार आपको उसके रिजल्ट्स दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो ये मेरा एवरेज बैंड का क्वेरी है, इसमें भी बाय और सेल के लिए मैंने जनरेट किया होगा। ये भी आप डेली पे और वीकली पे इसको रन कर सकते हो। सो अभी एग्जांपल यहाँ पे हम लोग वीकली पे देख लेते हैं कि ये वीक में कैसे सिनेरियोस जनरेट हुए। ओके, सो 27 स्क्रिप्ट्स है। आई डिस्क्लोज वन थिंग ऑन दिस, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स आपको स्ट्रेंथ
के बेसिस पे आ रहा है। ओके, से जो भी रिजल्ट्स आपको बता रही है, आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि स्ट्रेंथ इसका अच्छा है या बुरा है। मतलब ये अभी सेलिंग के लिए अगर आप देखोगे तो काफी सारे स्क्रिप्ट्स आए हुए, लेकिन बाइंग के लिए सिर्फ 2 ही आए। मीन्स ये 2 स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ में चल रहे हैं। ओके, दिस विल डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्क्रिप्ट। ओके, so this is all about the average band. Next thing is advanced query making with technical query. ओके, सो टेक्निकल क्वेरीज भी काफी लोग ने बनाए होंगे कि हाउ टू मेक क्वेरीज, लाइक उसको कंडीशंस कैसे यूज करने हैं, क्या यूज करने हैं, वो काफी लोग को आइडिया होगा यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉपर एडवांस क्वेरी आप कैसे बनाओगे, उसके भी कुछ कुछ चीजें जो आपको नोटिस करनी पड़ती है। सो वन थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस इन स्पाइडर टू मेक योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। एक प्रॉपर टेक्निकल क्वेरी बनाने के लिए, एक एडवांस टेक्निकल क्वेरी बनाने के लिए आपको कंडीशंस पता होने चाहिए स्पाइडर के, कि स्पाइडर में कंडीशंस कैसे है, क्या है, और वो वर्क कैसे करेगी। सो मैनी ऑफ यू विल नॉट बी नोइंग कि ये कंडीशन क्या है, हाउ दिस विल वर्क, बट वी विल गाइड यू ऑन एवरीथिंग। हमारे एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। सो आपको कभी भी कोई भी कंडीशन सीखना हो, चाहे वो एवरेज हो, सुपर ट्रेंड हो, एमएसीडी हो, वी विल गाइड यू ऑन ऑल दी कंडीशंस। एक बार आप कंडीशन समझ लीजिए, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस रिक्वायरमेंट्स में आप उसको मैच कीजिए। सो उस अकॉर्डिंगली आपका एक प्रॉपर एडवांस क्वेरी बनेगा। ओके, यूज इनपुट चेंज ऑप्शन इन क्वेरी मेकिंग व्हेन रिक्वायर्ड, as it is the as it changes input of different values and query can be made apart from input of close. ओके, नाउ इनपुट चेंज का भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपका एडवांस क्वेरी है तो क्लोजिंग के बदले शायद आपको हाई का भी इनपुट लग जाए, लो का भी इनपुट लग जाए, और एल्स ओपन का भी इनपुट लग जाए, और एल्स कोई डिफरेंट स्टडी का भी आपको इनपुट लग सकता है उसमें। सो इनपुट कैसे चेंज करना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो आप इनपुट चेंज का सिस्टम समझ लीजिए कि वो कैसे चेंज करता है। वो भी चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड मैंने उसी का ही क्रिएट किया हुआ। सो विल ऑल्सो चेक हाउ टू चेंज द इनपुट। ओके, you can also use the formulas when required. It can help if various mathematical conditions are included in query. मतलब समझ लो कि आपका कुछ ऐसा है कि मुझे हाई माइनस लो करना है, या फिर क्लोज प्लस ओपन करना है, कुछ ऐसे मैथमेटिकल कंडीशंस है जो आपको टेक्निकल क्वेरी में चेक करके चाहिए। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज काफी सारे। टेक्निकल क्वेरी जब आप ओपन करोगे, जब आप स्टडी लिस्ट ओपन करोगे, तो एफ बटन प्रेस करोगे तो वहां पे सारे आपको फॉर्मूलाज आ जाएंगे। सो कुछ भी ऐसे मैथमेटिकल कंडीशंस अगर आपको चेक करने हैं, तो आप डायरेक्टली एफ बटन प्रेस करके एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा कंडीशन वहां पर मैच हो सकता है। ओके, अनदर थिंग इज यू कैन बैक टेस्ट योर क्वेरी विद क्वेरी ऑफसेट फीचर। ओके, एक क्वेरी ऑफसेट आप रैंडमली, जैसे मैंने अभी देखा 5 कैंडल्स 10 कैंडल्स, सो एक ऑफसेट करके आप देख लीजिए कि आपका क्वेरी कैसे वर्क कर रहा है। अगर पास्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो नेक्स्ट कमिंग सेशंस में भी वो परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द प्राइस मूवमेंट, एंड प्राइस का कहना क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, हिस्ट्री रिपीट होने के चांसेस होते हैं, डाउन ट्रेंड आ सकता है, अप ट्रेंड आ सकता है। सो चेक करने के लिए आई सजेस्ट टू डू द क्वेरी ऑफसेट, सो यू कैन बी अवेयर ऑफ हाउ योर क्वेरी इज वर्किंग। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज क्वेरी रिलेशन ऑप्शन। अगर एक से ज्यादा कंडीशंस है आपके, तब उसको कंबाइन कीजिए। वो कंबाइन करके आप चेक कर सकते हो कि आपके कंडीशन कैसे चल रहा है। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रिलेशन बना लीजिए। मल्टीपल रिलेशंस मर्ज हो गए तो एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट, यूज एडिशनल फिल्टर्स लाइक प्राइस रेंज, क्वांटिटी रेंज, नंबर ऑफ ट्रेड्स टू रिड्यूस रिजल्ट्स एज एट पर्टिकुलर रेंज। मतलब कुछ रिजल्ट्स आप अगर स्कैन कर रहे हो, जैसे कि अगर एवरेज के ऊपर कौन से स्क्रिप्ट्स है वो आप चेक कर दो, तो आपको दुनिया भर के रिजल्ट्स आ जाएंगे, लाइक 100 रिजल्ट्स, 200 रिजल्ट्स। लेकिन उसको भी फिल्टर आउट करने के लिए आई सजेस्ट कि आप एडिशनल फिल्टर्स यूज कर लीजिए। अगर आप कुछ ऐसे ही रेंज वाले स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो कि 500 से लेके 1000 के रेंज के अगर कोई स्क्रिप्ट हो, आपको सिर्फ उसी में ही ट्रेड करना है।
तो वो रेंज आप डाल दीजिए कि मुझे सिर्फ इसी रेंज के स्क्रिप्ट्स दिखे, तो आपको बाकी सारे स्क्रिप्ट्स उसमें नहीं आएंगे। अगर आपका कुछ पर्टिकुलर है कि मुझे ये रेंज के मीन्स 50,000 क्वांटिटी ट्रेड होना ही चाहिए, 50,000 क्वांटिटी ट्रेड के बाद आप वो रिजल्ट्स कैच कर सकते हो। सो उस अकॉर्डिंगली आप देखिए। ओके, सो दिस विल हेल्प टू रिड्यूस योर रेंज। ओके, if your required condition is common, then run query in your specific group to avoid maximum number of results. अगर ऐसा कुछ है कि आपको सिर्फ आपके 10 स्क्रिप्ट्स के लिए ही क्वेरी रन करना है, तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट टू मेक अ ग्रुप ऑफ दैट 10 स्क्रिप्ट्स और सिर्फ उसी को ही रन कीजिए। हाँ, एक वन टाइम आपका प्रोसेस होगा कि एक बार आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, थोड़ा मे बी 5 और 10 मिनट्स आपका टाइम कंज्यूम होगा वहां पे, लेकिन फॉर कमिंग सेशंस, कमिंग टाइम जो आपका रहेगा, जो मार्केट का क्रूशल टाइम होगा आपका, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आप डायरेक्टली निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 आप रन करते हो तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो आप आपका पर्टिकुलर ग्रुप रन कर लीजिए उसमें, तो सिर्फ सिलेक्टेड 1, 2 या 3 रिजल्ट आएंगे, तो कैसे आप वो 3 स्क्रिप्ट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर एडवांस क्वेरी मेकिंग विद टेक्निकल क्वेरी। नाउ नेक्स्ट थिंग कि आप इनपुट कैसे चेंज करोगे टेक्निकल क्वेरी में। सो व्हाट इज इनपुट चेंज इन क्वेरी मेकिंग? It changes the input of conditions added on chart और टेक्निकल क्वेरी। ओके, तो अगर टेक्निकल क्वेरी का बात कर, तो टेक्निकल क्वेरी में ना यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है चेंज इनपुट का। सो जैसे ही अभी मैंने यहाँ पे एवरेज 50 ऐड किया हुआ, अगर मैं चेंज इनपुट पे यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वेरियस इनपुट्स मिलेंगे कि मुझे कौन सा इनपुट लेना है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द इनपुट। नाउ व्हाई चेंज इनपुट इज रिक्वायर्ड? So just in case you want to check your technical indicators with inputs other than the closing, like high पे अगर आपको चेक करना है तो लो पे चेक करना है, या simply you need to change the input of additional indicator. Okay, समझो ऐसा कुछ हो गया कि अगर आपका RSI है, सो RSI में अगर आपको इनपुट चेंज करना है कि अगर रिसेंट 14 एवरेजेस के बदले आपको सिर्फ 7 एवरेजेस का अगर उसमें इनपुट लेना है, सो एक और RSI आप ऐड करके उसमें दूसरे RSI का इनपुट ले सकते हो। So this is how you can change the input. And last, how to change input in technical query. So add the required condition in technical query. आपका जो भी condition उसको add कीजिए. Then once added, click on input change button. So वहाँ पे input change का ये बटन मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक कीजिए and select the required input to run the query. Okay. Now last but not the least, we have golden and death crossover strategy. इसके बारे में आप लोगों ने सुना रहेगा, गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। सो इट इज द क्रॉसओवर ऑफ SMA 50 एंड SMA 200। ओके, सिंपल 50 और 200 के क्रॉसओवर्स होते हैं इसमें। जब भी 50 का एवरेज 200 को क्रॉस करके ऊपर जाता तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर माना जाता, एंड वाइस वर्सा जब 50 का एवरेज 200 को क्रॉस करके नीचे जाता सो दैट इज द डेथ क्रॉसओवर। सो दिस मीन्स दैट ये स्क्रिप्ट यहाँ से अभी बैरिश हो रहा है और यहाँ से स्क्रिप्ट का बैरिशनेस होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। ओके, सो SMA के बदले आप EMA भी यूज कर सकते हो। EMA विल बी दी वो लैगिंग इंडिकेटर आपका नहीं रहेगा। EMA विल वर्क एज पर दी रिसेंट प्राइस। ओके, सो रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देके फॉर्म होगा। So when SMA 50 crosses below the SMA 200, then it is the death crossover. Okay, so generally price takes support of SMA 50 or SMA 200 many times to generate a pullback opportunity. Okay, so जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये बेल का डेली चार्ट है यहाँ पे। सो मल्टीपल टाइम्स ना प्राइस ने 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेके मूवमेंट कंटिन्यू किया। ओके, एंड ऑल्सो प्राइस ने 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेके कंटिन्यू किया। सो ये दो एक ऐसे एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज के कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू करता है प्राइस मूवमेंट। ओके, सो यहाँ अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये सर्कल जो है यहाँ पे मैंने गोल्डन क्रॉस ओवर लिखा। सो ये एक ऐसा क्रॉस ओवर था कि ये क्रॉस ओवर के बाद बेल में काफी हैवी अप मूवमेंट आया था। ओके, और अभी कुछ वीक्स पहले इसका अगर आप देखोगे तो वापस एक डेथ क्रॉस ओवर हो चुका है।
सो दैट क्रॉसओवर के बाद अगर आप देखोगे तो एक काफी लंबा सा एक डाउनफॉल आ रहा है। ओके, अभी प्राइस वापस से ट्राई कर रहा है कि वो दोनों एवरेज के ऊपर सस्टेन हो जाए। सो सस्टेन होने के लिए पहले उसको 50 को क्रॉस करना है, जो 50 क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। अब वो 200 को क्रॉस करेगा। सो जस्ट इन केस ये 200 क्रॉस होके सस्टेन हो जाता, सो देयर कैन बी वेरी हाई चांसेस कि ये 80 का टारगेट यहाँ पर सेट हो जाए। ओके, बट उसके पहले ये जो सिंपल 200 है, ये सिंपल 200 एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर सकता। सो द मेन चैलेंज फॉर द whale will be to cross the simple 200 moving average. Okay, so this is how you can check the golden and death crossover strategy. इसका भी मैंने क्वेरी बनाया हुआ, इसका भी आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, ये क्वेरी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सो जस्ट एक स्मॉल समरी दे देता हूँ आपका क्वेरी कैसा रहेगा। 4 मैंने रिलेशंस बनाए। एक रिलेशन में पावरफुल स्ट्रेंथ बाय है, एक में है प्राइस एट सपोर्ट, एक में है पावरफुल स्ट्रेंथ सेल, और एक में है प्राइस एट रेजिस्टेंस। सो हाउ दिस विल वर्क एग्जैक्टली, मैं इसका एक चार्ट ओपन करके बता देता हूँ आपको। ओके, सो इसका चार्ट मैंने ओपन किया। अब ये जो पावरफुल स्ट्रेंथ बाय वाले जो रिजल्ट्स है, ये सारे वो रिजल्ट्स है जिसमें प्राइस इज अबाउ बोथ दी मूविंग एवरेज। ओके, प्राइस जब दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो एक अच्छे स्ट्रेंथ में माना जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस एट सपोर्ट। सो ये आईडीएफसी है और जो एसकेएफ इंडिया है, ये दोनों रिजल्ट ऐसे जो सपोर्ट ले रहा है एवरेज का वहां पे। ओके, सो इसलिए मैंने वहां पे नाम दिया है प्राइस एट सपोर्ट, और यहाँ पर है पावरफुल स्ट्रेंथ सेल। सो ये सारे रिजल्ट्स वो है जो दोनों एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं। ओके, एवरेज भी हमारा नेगेटिव है, 50 मूविंग एवरेज इज बिलो दी 200। ओके, और प्राइस इज ऑल्सो बिलो दी एवरेज, और लास्ट है प्राइस एट रेजिस्टेंस। सो जो चोला होल्डिंग है, केआरबीएल है, ये सारे वो रिजल्ट्स है जो रेजिस्टेंस पे रुके हुए, जिन्होंने एवरेज का रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, सो एक क्वेरी आपको एक स्ट्रेंथ देखने के लिए और कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है वो देखने के लिए आपको काम आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूविंग एवरेजेस of average 50 and average 200, which is golden and death crossover. Okay, so in this webinar, in this between, I have received one question to check the Nifty Auto on the averages. Okay, so हम लोग निफ्टी ऑटो देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है इसमें। I'll change my chart here. I'll just load the another chart. And I'll take Nifty Auto. ओके, सो नाउ ऑटो सेक्टर क्या लग रहा है वो एक क्वेश्चन था। सो अगर आप रेनबो के तरफ से देखा जाए, सो रेनबो के तरफ से क्रॉस ओवर आ चुका है निफ्टी ऑटो में। सो एक यहाँ पर ही निफ्टी ऑटो का बुलिशनेस जनरेट हो गया था। सो अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा सा मूवमेंट था, लेकिन अभी कुछ टाइम से अगर आप देखोगे, सो प्राइस सारे रेनबो एवरेजेस को क्रॉस करके धीरे 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 वो नीचे आ रहा है। सो देयर कैन बी हाई चांसेस कि जो कमिंग के जो नेक्स्ट जो एवरेजेस है वो एवरेजेस एज अ सपोर्ट वर्क करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सो जूम इन करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेरा सपोर्ट 1 है। सो दिस एवरेज विल वर्क एज अ सपोर्ट 1, दिस एवरेज विल वर्क एज अ सपोर्ट 2, एंड दिस एवरेज विल वर्क एज अ सपोर्ट 3। ओके, सो आई हैव 3 सपोर्ट्स एज पर द डेली चार्ट। ओके, अगर वीकली पे देखूँ तो वीकली पे मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। सो लॉन्ग टर्म का मुझे कंफर्मेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो काफी क्रॉस ओवर है, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन है, काफी वीप सॉज है। सो प्राइस को मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। सो फॉर अ ब्रॉडर व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, एक बुलिशनेस मेंटेन करने के लिए मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना है, एंड उसके बाद कंसोलिडेशन का ये जो हाई है विच इज 12,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है निफ्टी ऑटो, so there can be high chances of the great movement to continue. Okay, so that's all about the today's webinar. हम लोग ने काफी सारे चीजें देखे, गप्पी मूविंग एवरेजेस देखा, रेनबो मूविंग एवरेज देखा, एवरेज बैंड देखा, और साथ में
गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर देखा और एडवांस क्वेरीज कैसे बनाते हैं वो भी देखा। ओके, सो दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल। सो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, we will share the link with you. So meanwhile, just in case if you have any issues, you can directly coordinate us on this number 022 350 18383, or you can WhatsApp us on this number as well. Okay, अब इन नंबर पे आप WhatsApp कर लीजिए अगर कुछ क्वेरी अगर आपको चाहिए, जो क्वेरीज मैंने बनाया, जो स्क्रीन्स मैंने बना, वो स्क्रीन्स अगर आपको चाहिए, ये PDF भी अगर आपको चाहिए, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए and we will happily share this PDF and technical query and screens with you. Okay, so thank you for attending this webinar. Thank you, Paras. Thank you, Avinash. Yeah. So if you guys have any query, you can directly contact on this number, and you can also write email or support@spidersoftwareindia.com. And that's all for today's webinar. Thank you for joining us.